Today, we have a celebrated guest. She is a certified life coach, a trained therapist, a NLP practitioner, a counseling psychologist. Please welcome Farat Gupta. How difficult do you see it is to let people realize they are beautiful from within? So when clients come to me, they come with a conditioned mind. अगर वो लड़का है तो he has to achieve, he has to earn, He has to provide. और लड़की हो तो आप beautiful होना चाहिए, आपको खाना अच्छे बनाने आना चाहिए. I had one client who walked in. By the end of the conversation, he told me, I'm very conscious about XYZ thing. और मैंने इसको पलट के बोला, बट मैंने ये आपके बारे में नोटिस ही नहीं किया. Do you feel that even the generations matter? उस टाइम पे टाइपकास्ट करते थे लड़कियों को अलग तरीके से. अभी भी कुछ बेटर नहीं हुआ है, अभी सोशल मीडिया आ गया है. Self-worth and inner beauty. We are only judging भाई गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, कमाना चाहिए, लड़का हो तो. We can find average very beautiful. This marketing companies are not telling you. You just bring that deep connection in relationships. What is it that makes us disconnected? The relationship is burdened. It's not wrong to expect from a partner. It is absolutely wrong when you have not learned to manage that expectation in case it is not fulfilled. Every working woman, I would say, who takes care of herself It's been has accused. been tagged. To every woman who is listening, please, through my experience, I can guarantee you, redefine selfishness over self-interest. हम खूबसूरती को कैसे देखते हैं? हम जहाँ कहीं से भी इस खूबसूरती को परखते हैं, लेकिन उसकी अंदर का ग्लो वो हमेशा से हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे एवोल्यूशन से आता है. एंड दैट्स व्हाट मी एंड माय गेस्ट्स आर हियर टू डिस्कस. वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी विजडम को यहाँ मेरे साथ शेयर करते हैं. और बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी विजडम के साथ आप सब तक मैं अपने दिल की बात पहुँचा सकूँ और आप भी अपने अंदर की कोई भी खूबसूरती को जगा सके और आप भी कह सके आई एम फॉरएवर यंग. वेलकम टू माय ब्रांड न्यू सीजन ऑफ किसी ने बताया नहीं. द ब्यूटी इज इनसाइड आउट. Hi my beautiful people, welcome back to a brand new episode of Kisi Ne Bataya Nahi, Beauty is Inside Out. So I want to understand that this whole personal inspiration or an experience of connecting two people through psychology came from where? I'm not here because मुझे साइकोलॉजिस्ट बचपन से बनना था. मुझे नहीं बनना था ये. Through my life, I experienced my lowest moment, my darkest moment, and where I lost everything. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ट्विन टावर का एग्जाम्पल where you hit ground zero. So that has been my moment when I really hit ground zero, and मुझे अपने आप को रीबिल्ड करना था. Wow, okay. और रीबिल्ड के लिए मैंने आसपास देखा तो मुझे ज़्यादा कोई नज़र नहीं आया बिकॉज आई हैड लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स बाय देन. सो आई वोक अप एंड आई रियलाइज दैट ये मुझे ही करना पड़ेगा. एंड मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम पे. माई हस्बैंड वॉज इज़ वेरी अकम्पलिश्ड human being and a great person, and he was very busy doing his role to provide for the family. That left me to be almost on my own. मैं अकेली थी एंड मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा. और मेरा फर्स्ट स्टेप था जाके एक कोर्स में बैठने. और मैं पहले दिन मैं बैठी हूँ और वहाँ पे मैं अपने प्रोफेसर को देख रही हूँ और उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था कि आपकी खुशी आपके हाथ में. एंड इट रियली जोल्टेड मी बिकॉज जब तक मुझे यही लग रहा था कि मेरी लाइफ में ये हुआ है, आई एम मिजरेबल, ये हुआ है मिजरेबल, ये नहीं है मिजरेबल, वो नहीं है मिजरेबल, कुछ नहीं है मिजरेबल, तो मैं करूँ क्या? और मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. मैं कहाँ फंस गई हूँ? मतलब ये मेरी लाइफ ऐसी कैसी हो सकती है? एंड मैं सामने एक बंदे को बोल रही हूँ वेरी कॉन्फिडेंटली. शी इज़ टेलिंग मी दैट योर हैप्पीनेस इज कम्प्लीटली इन योर हैंड irrespective what happens in your life. Wow. I promised myself this is the path I want to get on. And when I got on to that path and when I liberated myself first, मैंने अपने आप को पहले सेव किया. जब मैं अपने आप को completely सेव कर पाई, well, completely मतलब अभी भी the journey is on till I die, but I thought कि wow, I must help people. Wow. You are a seasoned therapist. You are a relationship expert. And you have helped more than 800 clients tap into their inner beauty.
How difficult do you see it is to let people realize they are beautiful from within? पीपल आर लॉस्ट, उनको बताया नहीं गया ना कि वो है क्या। उनको बताया गया कि आप लड़की हो तो आप ब्यूटीफुल होना चाहिए, आपको दबना चाहिए, आपकी रोटी गोल होनी चाहिए और आपको खाना अच्छे बनाने आना चाहिए, आपको वापस जवाब नहीं देना चाहिए। कितनी बार यू विल सी ऑन द एयरक्राफ्ट, सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप बीच में बैठे हो और आप लेडी और आपके बाजू में 2 जेंटलमैन बैठे हैं, तो दे विल वेरी कॉन्फिडेंटली यूज़ द हेड। एंड इन मैं जब भी ऑब्जर्व करती हूँ एक लेडी हमेशा वो ऐसे बैठेगी सिमट के। ये हमको सिखाया गया है, हमको कम जगह लेने की आदत सी डाल दी है। चेस्ट बाहर निकाल के मत चलो, हिप बाहर निकाल के मत चलो, झुक के चलो, नजरें नीचे रखो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज एनी कल्चरल फॉल्ट इन दिस। हमको ये बताया नहीं गया कि हमको ये सब क्यों करना चाहिए, और आप नहीं भी करोगे तो इट्स ओके। काफ़ी हद तक हमारी कंडीशनिंग की गई है। तो व्हेन क्लाइंट्स कम टू मी दे कम विद अ कंडीशन माइंड। अगर वो लड़का है तो ही हैज़ टू अचीव, ही हैज़ टू अर्न, he has to provide, he has to provide, he has to be intelligent, he has to be in the rat race, उसको अच्छा लगना चाहिए। You know, I had one client who walked in. By the end of the conversation, he told me, I'm very conscious about XYZ thing, which was to do with his appearance. और मैंने उसको पलट के बोला, बट मैंने ये आपके बारे में नोटिस ही नहीं किया। तो बोल रहे रियली? मैंने बोला हाँ, and I mean it. I really did not see that. And I said, this is exactly how you're living your life. You are thinking that people are judging you, but I didn't even observe that. I just saw you as a brilliant young man walking into my clinic. So well behaved. So I could see those inner qualities in you. And it truly did not matter to me. And that was a very groundbreaking conversation he heard. We have been conditioned to unconditionally also we've been conditioned, मतलब unconsciously also we've been we have been conditioned कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो शायद चलता ही आ रहा है। हाँ, वो चलता ही आ रहा है। एज आई वॉज ग्रोइंग अप मैं ये जानती हूँ कि मैं बाथरूम में जाके अपना मुंह घस घस के धोती थी और फिर मेकअप लगाती थी। आई वॉज लाइक वॉट, इन अ फैमिली वेडिंग आई मस्ट बी वॉट 8, 9, 10 years। एंड देन आई बचपन में मैंने कुछ ज़्यादा लिपस्टिक का ब्लश लगा लिया। व्हेन आई केम आउट एवरीवन वाज लाफिंग एट मी। But you thought that this is the standard of beauty, This ये is the लगना चाहिए, ये लाल। लगना चाहिए और मैं इससे अच्छी लगूंगी। एंड देन अगेन व्हेन दे टोल्ड मी कि नहीं आप मतलब बंदर लग रहे हो, बिकॉज बंदर के गाल लाल होते हैं। एंड एवरीवन वाज लाफिंग, यू सी। एंड देन अगेन आई वेंट इनटू द बाथरूम, आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, एंड अगेन आई एम रबिंग माय फेस। इट इज ओनली अप टू व्हेन आई ग्रू अप इनटू माय टीनेज, व्हेन जब मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और पढ़ाई में मुझे अच्छे ग्रेड्स आने लगे, मुझे लगा कि ठीक है, बियॉन्ड ब्यूटी भी मेरे अंदर काफ़ी काबिलियत है जिससे मुझे खुशी मिल सकती है। एंड दिस वाज माय पर्सनल जर्नी, बट काफ़ी लोग ये जर्नी से नहीं गुजरते, एंड दैट्स वेरी सैड। जब मैं स्पोर्ट्स में एक्सेल करती थी तब मुझे खुशी मिली, और तब मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड मैच नहीं कर सकती हूँ बट मेरे अंदर काफ़ी अदर क्वालिटीज़ है, बट ये मुझे एक्सपोजर मिला, मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मुझे किसी ने बोला नहीं आपका किसी ने नहीं बताया एक्चुअली। या सो ट्रू। मुझे ये बताया गया कि यू हैव टू बी लुकिंग प्रिटी सो दैट आपके रिश्ते अच्छे आ सकते हैं। We are not content with who we are, or first of all we do not acknowledge that, and then we put up a facade or live in a mold till a time we really feel suffocated and we say no more now. Correct. Do you feel that even the generations matter, like the millennials and Gen Zs, or maybe the earlier generation than millennials? See, generation उस टाइम पे टाइपकास्ट करते थे लड़कियों को अलग तरीके से। अभी भी कुछ बेटर नहीं हुआ है, अभी सोशल मीडिया आ गया है। अब आपके सिर्फ फिल्टर्स एनहांस हो गए हैं। सोशल मीडिया इज इवन वर्स, बिकॉज पिछले जब हमारे टाइम पे हमारा एक्सपोजर इतने ही लोगों के साथ होता था, हमारा कंपैरिजन ज़्यादा था ही नहीं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़े इजीली बढ़ भी जाता था, बिकॉज हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स काफ़ी टफ थे। एक्चुअली इट बिल्ड अ रेजिलियंस, हम इतने सेंसिटिव नहीं थे। सेंसिटिव इज द की वर्ड। आजकल की जनरेशन इज सुपर सेंसिटिव, बिकॉज आप 4 to 10,000 इमेजेस दिन में देखते हो।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ब्रेन नेचुरली जहाँ पे ह्यूमन फिगर होता है वो इमेज देखना पसंद करता है विदाउट वी रियलाइजिंग. ओके. एक गाड़ी का इमेज होगा और गाड़ी के साथ एक मॉडल होगी तो वो वहाँ पे आपकी नज़र ऑटोमेटिकली जाएगी, आपको पता भी नहीं एंड चलेगा. आई थिंक दैट्स हाउ द एड्स वर्क ना. एग्जैक्टली. गाड़ी मतलब एड गाड़ी का है, हाँ. बट देयर इज अ सुपर मॉडल, अ Yeah. हॉट मॉडल वॉकिंग अराउंड एंड Correct. सेलिंग द कार मे बी थ्रू हर प्रेजेंस. करेक्ट. Oh. थ्रू हर ब्यूटी, Through her beauty. not her presence. Oh, okay. ओनली ब्यूटी. Okay. एंड दैट इज ऑब्जेक्टिफाइंग. एक गाड़ी खूबसूरत है और यहाँ पर एक लड़की, आप नहीं जानते हो यार उसका जर्नी. You put a very normal person na in front of the car. When will our ad marketing agencies realize that when will we evolve to becoming very normalizing normal people यार. 10,000 इमेज में आप 99999 इमेज देखते हो एकदम परफेक्ट. बिकॉज हमको इनग्रेन कर दिया गया है कि वी मस्ट प्लीज अदर पीपल व्हेन दे लुक एट अस. दूसरा बंदा खुश होना चाहिए हमको देख के. तो हम 4 घंटे मेकअप कर रहे हैं, राइट. फिर हमको बताया गया है कि नहीं, आपकी जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, वो दूसरों की सर्विस के लिए है. आपको सर्विस देना है हर तरीके से. सेक्सुअली सर्विस देना है, फिजिकली सर्विस देना है, सेवा भाव रखना है, विजुअली देना है, विजुअल भी आपको अपीलिंग रहना है. मैं अपनी भी बात क्यों नहीं करूँ यार. हम जब लड़कियों को जब हम बड़ा करते हैं लाइक गर्ल चाइल्ड, हम उसको डेवलप करते हैं. ये नहीं पूछते भैया तू आर यू कंफर्टेबल इन दैट आउटफिट. वो क्लिप चिपका देते हैं भाई, क्योंकि हमको क्यूट दिखाना है अपने बच्चे को. हमको क्यूट, हम ही उसको, इट्स फॉर आवर प्लेजर ना. That my daughter is looking very yeah, pretty. it's very pretty. She is looking pretty. So now the daughter knows I'm supposed to look pretty because mama gets very happy. Oh. And we are matlab unintentionally setting those. Here I want to know self-worth and inner beauty. There you go. And the answer is how our conditioning is. It's cultural, it's societal, we also do it subconsciously somewhere. It will require a lot of awareness. मैं झूठ बोल रही हूँगी अगर मैं बोलूँगी कि नहीं यू नो ब्यूटी का कोई रेलेवेंस नहीं है. फाइट अगेंस्ट ब्यूटी, फेमिनिज्म का झंडा लेके आप यू नो ब्यूटी नहीं. भाई वी हैव टू रिकग्नाइज, यस एक्सेप्ट ना भाई कि ब्यूटीफुल पीपल को अटेंशन मिलेगा, ठीक है. ये एक एस्पेक्ट है. अच्छा क्यों, लेकिन ये हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों, वाई इज ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव. पहले ये तो समझ लो ना यार. खाली एस्थेटिक्स वैल्यू नहीं है. व्हेन आपकी स्किन क्लियर है, अगर आपके फीचर्स अलाइंड है और बॉडी प्रोपोर्शनेट है, तो आपका सिंपल सबकॉन्शियस सिग्नल आप दे रहे हो सामने वाले को कि आपके जीन्स अच्छे हैं, आप हेल्दी हो. So looking beautiful is like a byproduct. It's a biological message that you're giving to another person which is your potential mate कि आप हेल्दी हो. आपका जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है. Okay. आप प्रोक्रिएट कर सकते हो अच्छे से. सो फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन्स कर्वेचर लंबर इज वेरी अट्रैक्टिव. मतलब द एस शेप इन हर कमर इज अट्रैक्टिव. व्हाई इज इट अट्रैक्टिव भाई, समझ लो. बायोलॉजिकल रीजन ये है कि वो शेप प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है एंड इट विल नॉट लीड टू बैक इंजरी. वी आर इवॉल्व, आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड कि अच्छा ये टाइप का बॉडी में प्रेगनेंसी ईजिली हो सकती है. तो ये मतलब ये मेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लेट्स यू नो मेट विथ हर एंड प्रोक्रिएट बेटर चिल्ड्रन फॉर सर्वाइवल. Wow. I want to just interrupt you and let you know, during my dating phase with Abhinav, he used to give me this very weird reason when I used to ask him, what do you like in me that you fell in love or you feel attracted towards me? You know what answers he used to give me? You have cadence, you have great genes, and we'll be procreating good forthcoming generation. Yeah. It's like, what is this reason of, being attractive? Yeah. Why la? Yeah. I get to know 10 years later, this is what he meant. This is what he meant. Sorry, baby, I realized it today. Wonderful. Please continue. While you were speaking, I was like, Yeah. oh, this rings bell. Why? Thank you. A V-shaped torso is telling कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस है बंदे में. ठीक है. सो वी गेट ड्रॉन टू इट. इसमें गलत नहीं है. टिल ईयर वी आर फाइन. सो वी हैव टू एक्नॉलेज दैट कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इट इज गिविंग आपके अगर मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हम वो सीख करते हैं
we are seeking that as We because we are seek it. human being because Yeah. we want to procreate. हमारा Yeah, procreation is a agenda of life. अगर एक clear skin है तो we understand कि hormones balance में है ना भाई. So it gives you a certain parameters कि ठीक है biologically this is a very healthy person whom we are seeking. Now media will come in with airbrush. पतली नाक, बड़े आँख, you know ये मोटे होंठ. you मोटे होंठ, not required. Average is beautiful enough for a subconscious. This is where the information is skewed and it goes to the other side. Ke beauty is then seen as the only parameter for mate selection. No. One part of beauty is this. For example, let me give an analogy. Okay, आप एक showroom में जा रहे हो, आप दुकान में जा रहे हो, बाहर आपके 2 मैनिक्विन खड़े हैं ना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि अंदर क्या स्टॉक होगा. Exactly. अंदर का स्टॉक का वैल्यू नहीं है. हमने उसको बहुत डीप तक लेकर गए. हमको लगता है ब्यूटी वो पूरा ही स्टॉक, पूरा वैल्यू वही है भाई. अब पूरी दुकान की वैल्यू इज वर्थ क्रोर्स. वो 2 मैनिक्विन आर ओनली रनिंग इन थाउजेंड्स. Very well said. सो योर ब्यूटी इज ओनली दैट मच वैल्यू. नाउ कम्स कट टू आप ब्यूटीफुल हो सकते हो इफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज गुड, इफ यू आर रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, दैट इज अ साइन ऑफ गुड जीन्स. Confidence is good genes? Of course, because the person is self-assured, which mean if she is carrying a child, then through a pregnancy, her mental state is going to be brilliant. Her cortisol's level will be much in control. Oh. So, which means she's not going to pass on the stress hormones to the child. Lack of worthiness, inferiority complex. So, if a person is coming across as very confident, fantastic, beauty. A person has a talent, आवाज अच्छी है. Good genes. Intelligent, good genes. Very kind. Brilliant. That is also a display of beauty. So everything is interconnected. Everything. But what are we focusing on? We are only judging by गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, कमाना चाहिए, लड़का हो तो उसके XYZ बॉडी फीचर्स होना चाहिए, 1 carat solitaire आना चाहिए, बैंक बैलेंस इतना ही होना चाहिए. भाई, nothing is beautiful here. Yeah. One aspect is magnified by media because it is a $600 billion industry. So they are going to manipulate you into profit. Wow. Okay. How does the ad start? They'll pick up a situation. Let's say a situation is I have blemish on my face or a pimple or my skin color is wheat complexion. Then they'll turn that into a problem. फिर वो मुंह बनाएगा ऐसे. अभी आपको कर दिया, और अगर आप कहीं पर भी उससे रिलेट हो रहे तो आपको पता चल गया अच्छा ये बैड है. ओह तो अब प्रॉब्लम, वहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम आपको ज़बरदस्ती आपके ब्रेन में डाल दिया कि यू आर लेस. So this is not my problem, but this is the problem that I've taken from the media. When I go and sit for a haircut, I'm always been told by the hairstylist, आप ये सीरम क्यों नहीं लगा लेते, आप ये कंडीशन करो ना. अरे आपको ये प्रोडक्ट मैं देती हूँ, इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे. और मैं बोलती हूँ यार मेरे बाल बचपन से ऐसे, यार आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं क्या, बहुत हेयरफॉल हो रहा है. मैंने बोला नहीं होता है. Every time I sit on the chair, that parlor person, because they want to sell me a product, first they will genuinely bring up this and tell me you have a problem, and I have to turn around and tell them it's not a problem. But do we have that self-awareness to tell them, no, it's not a problem. It's how I am or who I am. That's exactly why your program is here today, baby. That's why this channel, this episode, every woman must watch. Normalize the this way they are. conversation. Everything. Whatever about them is absolutely normal. They are not meant to please other people. These days I am listening to audiobooks of Carl Jung, and he talks about archetypes. And when he talks about archetypes, he says there are certain archetypes who see world in a certain way. I perceive beauty in a certain way because ये हमारे archetypes है, because that's how we've been built by the nature. तो अगर हमारे बीच में कोई difference of opinion है, तो जो ज़्यादा powerful होगा, again going back to the example of media, will always be burdening on you and telling you this is what is important. Absolutely. But I think we fail to recognize that we have to appreciate the difference that we have in opinion as well. Correct. तो अगर आपके स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी अलग है, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी अलग है, आपके विचार अगर आप थोपना चाहें या मैं अपने विचार आप पर थोपना चाहूं, that's not how we were built, because we were built differently.
एब्सोल्युटली, नॉट ओनली इन ब्यूटी, इन एवरी एस्पेक्ट. In every aspect. अगर आप ये कर लो रिलेशनशिप पे, ये एस्पेक्ट ले आओ, योर रिलेशनशिप इज वेरी स्मूथ. And you just bring that deep connection in relationships. You empower individuals. What is it that makes us disconnected? The big devil sitting between you and yourself is judgment. हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को जज कर रहे हैं. एक्टिवली अगर होता है तो पता चलता है, इट इज बिकम पैसिव नाउ. How do I understand it's passive? यू स्टार्ट सफरिंग. Simple. Okay. ज़्यादा सोचने लग जाओगे, ओवर थिंकिंग मोड में चले जाओगे. जितना आप अपने आप से दूर जाओगे, अपने पावर से दूर जाओगे, द सोल एनर्जी इज वेरी न्यूट्रल. गीता ऑलवेज सेज, राइट, sword cannot cut me, water cannot drench me, and fire cannot burn me. I am the soul. But between this power and the life we live, there is a big gap. And that gap is filled in by societal judgment, which we have internalized. We beat ourselves around that without knowing it. And the only symptom is when we suffer to an extent that When we are suffering, we are in shut pain. off. We are in pain and we are causing pain to people in relationship. आप दूसरे बंदे को कैसे खुशी दे पाओगे जब आप खुद ही खुश नहीं हो? तो आप खुद खुश नहीं हो तो आप फिर एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो कुछ करेगा तो आपको फील बेटर हो. Validation. इट कुड बी वैलिडेशन, इट कुड बी Expectation. एनीथिंग. बिकॉज अब आप अपने आप को वो दे नहीं पा रहे हो तो आप उम्मीद करते हो कि आपका पार्टनर आपको. So it's all rooting from within. इट इज ऑफ कोर्स रूटेड. If your relationship is thriving, it shows in your aura, in your well-being, in your posture, in your confidence. When you step out, you know you have a sense of assurity, you have sense of security with you. But जब relationship में problems आती है, बाहर वाला भांप लेता है, समझ में आता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, constantly सोच रही है, या फिर she's brain fogged, या वो चेहरे पे सडन टायर्डनेस है क्योंकि रात को आप सोए नहीं होंगे, आपने ओवर थिंक किया होगा, बहुत कुछ किया होगा. ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है. बट व्हेन आई से दैट even that beauty is affected, my presence is affected, and I'm expecting certain things. So is my expectations wrong from my partner, or is it something that I need to look from within, that why am I expecting this? सी नॉट एक्सपेक्टिंग इज अ वेरी फॉल्स नोशन जो हम क्रिएट करते हैं. नहीं, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट. ऐसे नहीं होता है ना. हम ये कभी स्टेट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. और या आपको कोई बोलता है अरे एक्सपेक्ट मत करो यार, एक्सपेक्ट मत करो, या आप अपने आप को भी बोल रहे हो तो आप अपने आप को लिटरली झूठ बोल रहे हो एक्चुअली. और आप दूसरे को भी झूठ बोल रहे हो कि एक्सपेक्ट मत करो. एज ह्यूमन बीइंग हमारा एक्सपेक्टेशन उभरना इज अ नॉर्मल experience. So management of expectation is a skill that we need to master. Okay. It's not wrong to expect from a partner. It is absolutely wrong when you have not learned to manage that expectation in case it is not fulfilled. Okay, I give you a situation. I expect my partner to maybe taking me out for a date, taking me out for a dinner. I want that to come from him, not me nagging him every time. First of all, why must it come from him when you want it? Because relationship is a two-way journey. हाँ, देखा ना, ये हो गया ना, एक बड़ा भार सा डाल दिया. भैया टू वे ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है. टू वे होना चाहिए, बट किसने बोला कि वो डेफिनेशन आप ही सेट करोगे टू वे का? वो टू वे है तो आप रिलेशनशिप में हो ना. फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी कुछ आपको टू वे मिल रहा है जो आपने एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है. उसका क्या? आप वो फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा है, और फिर आप बोलते हो टू वे होना चाहिए. भैया टू वे है तो आप हो ही. अगर टू वे नहीं होता तो अलग होते ना. आप हो तो काफ़ी टू वे मिल रहा है, कुछ टू वे नहीं मिलेगा. आपको भूख लगी है तो आप बोलोगे पार्टनर को जा खा ले भाई, खा ले मेरे बिहाफ पे, खा ले मेरा पेट भर जाएगा. नो, यू आर नीड्स व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल नीड, वी आर वेरी ट्रेन्ड. मेरे को लगता है रियली एनिमल्स आर मच बेटर, बिकॉज इफ माई कैट इज हंग्री ना, वो खुद जाके खाना खा लेगी. वो बाजू वाले मेरे डॉगी को नहीं बोलेगी जा यार मेरे लिए ले आ, आई एम टायर्ड, है ना. But I see in parties, women will tell their husband, just get me a glass of water, please. A man will tell, जा मेरे लिए खाना ले. यार भाई. But that's how it is expected, na? You treat and pamper your woman. It's great if it is coming naturally from him. But if you're going to set a demand, which you can very well do, nature is telling you, we have given you everything you need to fulfill your demands. But then don't I become very independent? And if I don't need a man, then man feels that I'm not needed. It's not a two-edged sword. It's about understanding the difference between expectations and making a person feel valued. I will have an expectation from you जो आपके अंदर कुवत नहीं है उसको भरने की. This person
डज नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे यार स्विच्ड ऑन रहना पड़ता है डिनर पे, या स्विच्ड ऑन रहना पड़ेगा बेबी बेबी आई लव यू बोलने। मेरे अंदर वो है नहीं, नेचुरली नहीं है, और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो मेरे पास है नहीं। हाउ फेयर इज दैट? बट दैट डज नॉट मीन यू कैन नॉट मेक मी फील वैल्यूड फॉर द थिंग्स आई डू विच कम्स नेचुरली टू मी। Okay. When you are in deep trouble, I can stand by you and I say, you know what, come what may, I'm not leaving your back. In the deepest conflict, I'm not running away and telling, अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, अलग हो जाओ, डिवोर्स कर देते हैं। यू नो हाउ एवरी पीपल, आजकल तो रिलेशनशिप मजाक बन गई, मतलब 4 झगड़े हो गए, भाई नहीं जल रहा, अलग हो जाओ। क्योंकि हाँ, पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है ना, पेशेंस लेवल कम हो गया, And रिस्पेक्ट ego- नहीं है ना, ego has become ईगो too नहीं है, fragile. पेशेंस नहीं है, खुद का रेजिलियंस नहीं है। हम बंदे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं मिस्टेक करने के लिए यार। Come again? We are not giving enough respect to a partner to allowing them to make certain mistakes and be okay with that But mistake. mistakes and respect for mistake, I mean, Yeah, respect for mistake because they are human being after all यार। तो This is क्यों something उसको रिस्पेक्ट फिर भी नहीं मिल सकता? हाँ, Even अगर वो if that- पैटर्न बन रहा है, अगर Yeah. कंसिस्टेंटली, वो आपको पता चल जाएगा कि योर पार्टनर इज नॉट इन्वेस्टेड, बट यू नो थ्रू एक्सपीरियंस कि आपका पार्टनर इन्वेस्टेड है यार, और वो कुछ चीज़ नहीं करता है तो ठीक है ना, इट्स ओके ना। और अगर आप में वो नीड जगती है तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू मेक द प्लान एंड मेक इट ईजी फॉर हिम एंड अप्रिशिएट कि वो बंदा ज्वाइन तो कर रहा है। That's a fresh perspective. Because मुझे लगता है आधे से ज़्यादा फसाद की जड़ ही ये है कि क्या मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं होती है, या फिर अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट आउट हो जाती है तो सामने वाला इज ओवर बियरिंग, और सामने वाला हैज़ टू हाई स्टैंडर्ड्स टू बी मैच्ड, दैट यू नो अ पार्टनर जस्ट फील्स कि यार मे बी आई एम नॉट cut out for the entire thing. Yeah, the relationship is burdened through expectation, and like I said, expectation आना नॉर्मल बात है, बट उसको मैनेज करना आपको आना कि इट इज़ ओके, अगर हो गया तो हम कितनी बार टर्न अराउंड करके ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, नहीं ना, हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, किया तो क्या हुआ, मतलब कितनी बार मैं देखती हूँ लोग बोलते किया तो क्या हुआ, मतलब इतना तो मैं ना भाई रिलेशनशिप में इतना तो करना पड़ेगा। अरे वाह, कहाँ से ये एंटाइटलमेंट आ गया यार, रिलेशनशिप में तो क्या हो गया? वाई इज द रिलेशनशिप टेकिंग द बर्डन ऑफ, बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप सर्टेन थिंग्स हैव टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वाई? Because that's how the precedent has been set. एग्जैक्टली, टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हमने शायद हमारे पेरेंट्स को देखा होगा, हमारी मम्मी या पापा, आई डोंट नो, मोस्टली इट इज द वुमेन बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। Yeah. तो लगता है कि हाँ, इतना किया तो क्या किया, इतना तो करना ही चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रिलेशनशिप में लाइक यू सेड, पार्टनर है तो इतना तो करना पड़ेगा भैया, करना कुछ नहीं पड़ेगा, बंदा करता है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं कर पाता है तो समझो कि नहीं है शायद उसके पास बैंडविड्थ उतना नहीं कर, कोशिश कर रहा है वो, और उसकी कोशिश पे आपको, यू शुड बी रियली थैंकफुल इफ ही इज ट्राइंग। माई फोकस इज द ट्राइंग पार्ट, द ब्यूटी इन द मैरिज इज ट्राइंग। ये इसको इस आसानी से ये मिल रहा है, इसको अगर आप उसके पास अच्छे हो, आपके क्या ब्यूटी है, मतलब ठीक है ना, व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट द मैरिज, द इंटरेस्ट कम व्हेन ईच वन ऑफ यू इज मेकिंग दैट एफर्ट यार। So marriage is going to be a constant work, or there is an Absolute. accomplishment No. or There a is stage? never an accomplishment. नहीं? Sorry, there is never an accomplishment in life ever till you die, even on your own self. So भूल 10 जाओ। साल 20 साल 30 साल कोई लैंडमार्क नहीं है 50 वहाँ साल पहुँचने के नहीं, लिए? till you die. Because वही आप वाव तो वही लेते हो ना, आप जब फेरे लेते हो, आप जब until death do us apart, भाई, until death do us apart, that's the journey. Why are you not realizing कि अगर आप मैरिज में, रिलेशनशिप में खुद को बदल रहे हो तो आप इवॉल्व हो रहे हो ना, आपकी कमियां ही तो इवॉल्व हो रही है ना। मैंने आजकल AI जनरेटेड वीडियोस कितने सारे आते हैं, तो हाल फिलहाल में आई सॉ रील where it shows stages of marriage and how it affects physically. When you are in your honeymoon period, nice, glowy, bright, bridal glow, the man is in his peak, both in honeymoon phase. Then comes the first 2 years of marriage when you realize, अच्छा honeymoon period खत्म हो गया, अब थोड़ी थोड़ी कमियां दिखने लग गई, तो थोड़े से वो जो वॉल्यूमनस हेयर है वो थोड़ी से कम होने लग गए। फिर आता है 4th and 5th ईयर ऑफ मैरिज, जब वो कमियां कुछ ज़्यादा ही अखरने लग जाती है तो दोनों के चेहरे हल्के से हैगर्ड जैसे दिख रहे हैं। फिर आता है आपका 6th and 7th ईयर, जहाँ पर यू कांट स्टैंड दैट पर्सन एंड यू फील कि भाई दिस इज द वर्स्ट डिसीजन दैट यू हैव मेड, एंड बोथ दोज ह्यूमन बींग्स
who looked so radiant in the honeymoon period suddenly look like, मतलब you know, वो होता है ना कि they'll just eat and pounce someone, वो पूरा चेहरा उनका distorted है. And I was like, यार relationship इतना affect करता है आपकी personal appearance को? a good question. अगर आप देखिए, आपको पूरा वापस से रिवाइंड करना पड़ेगा स्टोरी को डे 1 से. अगर ये रिलेशनशिप खोखली चीज़ों पे बेस्ड, अगर आप खाली अट्रैक्शन पे बेस पे आप डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो, 10 6 8 साल बाद ये रिजल्ट दिखेगा. This is how it is This gonna is be. because आपने गलत चीज़ के लिए, सो आई टोल्ड यू राइट, अगेन आई गो बैक टू माई प्रीवियस एक्सपीरियंस, बट आपने वो मैनिक्यून वैल्यू पे पूरा ही इन्वेस्ट कर दिया अपना, तो आपको 5 साल बाद जब वो ब्यूटी फेडेड होने लगेगी, तो आपको लगेगा भैया ये तो जिस रीज़न से शादी की थी वो तो रीज़न तो जाता रहा. नंबर 1. नंबर 2, पैसा देख के शादी की. Oh, the wrong reasons to get married? Exactly. You see? Now, wherever, if you have got married for deep, meaningful connection where आपके values match कर रहे हो, आप एक इंसान को एक इंसान के जैसा देख रहे हो beyond looks. You know, really I feel a good looking woman के लिए, and nobody has told you this, I am telling you because this is deep reflection coming, you know, when I sit with myself, कि a good looking woman के लिए बड़ा barrier है, क्योंकि उसके पीछे लोग देखते ही नहीं यार वो इंसान कैसा है. Nobody get past her looks. I have to like don't compliment me on the way I look यार. I don't like it. Look at me as a person. मैं क्या हूँ वो तो देखो. देखते मतलब it is a big roadblock. While other women will think it is an asset, मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. क्योंकि सुपरफिशियल उसके बाद कोई उसके देखना ही ऊपर चाहता कोई है. देखता ही नहीं है. अगर एक बोर्डरूम में एक वेरी गुड लुकिंग वुमन वॉक्स इन, वो बंदा उसके पैरों को देखेगा, उसके हिप्स को देखेगा, उसके यहाँ वहाँ देखेगा, वो सोचेगा कि नहीं ये बढ़िया टैलेंट है, इसीलिए बोर्डरूम में एटलीस्ट शी इज वॉक्ड इन, शी इज क्लाइम दैट लैडर. So for a woman it actually becomes a big roadblock. So coming back to your question, that the marriage like that, yes, you will fade, and that hence marriage is Constant work. continuous work. Number 1, you have to make sure that you are investing in yourself, in the way you look for your partner, no matter after 40 years also. That's your responsibility towards marriage. Not just a bridal package that you take on the time of शादी. No. A lot of women get very complacent. भैया अभी आएगा तो शादी वही हो गई. नाइटी में घूम रहे हैं, वही बाल ऐसे झंझेड़े हुए हैं, क्या बच्चे को देख रहे हैं, हम बच्चे को देख रहे हैं, हम बच्चे को देख रहे हैं. I have had clients where the husband is very disappointed. यार बच्चे के अलावा ये बंदी कुछ, I've lost my wife. I found a mother but lost a wife. Why can't a woman think beyond a role? You're a mother, a part of you is a mother, but a large part of you is yourself also, na? But कितना overbearing नहीं हो जाता है when you have sudden life around you and who constantly needs you? How can you just take out time for yourself and be prim-prom for your husband? And why not? And my question is why not? कितना आधा घंटा when the child is sleeping? अभी देखना, आप इस वीडियो के नीचे कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, इनके लिए तो आसान है बोलना, पर हमारे लिए तो घर की रोटी भी बनानी है, हमको सास को भी देखना है, हमको ससुर को भी पानी देना है, या माँ का ध्यान रखना है, या पिताजी का ध्यान रखना है, मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है. सो द लिस्ट इज, हाँ लिस्ट तो एक्सक्यूजेस एंडलेस. ये आपको सोसाइटी ने ट्रेन कर दिया है कि इनका भी देखना है, इनका भी देखना है, इनका भी देखना है, इनका भी देखना है, इनका भी देखना है. किसी ने बताया आपको कि आपको अपना भी देखना है, और सबसे पहले अपना देखना है. सबसे पहले अपना देखना ये है. किसी ने नहीं बताया ना यार. माँ बाप को अपनी लड़कियों को पहले ये दिखाएं यार, पहले अपना देख लो. एयरक्राफ्ट में जाते हो तो ऑक्सीजन मास्क तो पहले खुद लगाते हो. I love that analogy. Okay. उसके बाद दूसरों की सहायता करें. उसके बाद आपने छोटा इन्फेंट, when I was flying for BA, I was like in when I entered the training and I was told कि you know put the mask for the, and I questioned my instructor. It's my infant. See, if I'm coming from that conditioning ना. मेरा बच्चे को कुछ हो गया तो why should I tell the mother to put? Why not the infant? That time the instructor didn't sit me down. She called me separately and she said, you know what, always look after yourself, because if the mother is alive, she'll make sure that the child is alive. In the moment of decompression, while she's struggling to put on the mask, if something happens to the mother, the child won't survive. But isn't it selfish to look after you? This is the conditioning. Please differentiate between selfishness and self-interest. Selfish कब होता है इंसान? जब दूसरे को नुकसान करके अपना फ़ायदा उठाता है, तभी वो selfish कहलाया जाएगा. Okay. अगर मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार है
और मुझे राइट नाउ प्रायोरिटी उनकी हेल्थ है, अगर वो छोड़ के मैं अपने किटी पार्टी में जाती हूँ या फिर मैं अपना हेयर ब्लो ड्राई करने जाती हूँ, विच इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट परहैप्स बट इफ एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द स्केड्यूल, अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा वॉक पे चले जाऊँ, दैट इज माई सेल्फ इंटरेस्ट, आई एम सॉरी, एंड दैट आई विल डिसाइड whether I'm being selfish or I'm looking after myself, because I have been accused of being selfish. Every working woman, I would say, who takes care of herself It's been has accused. been tagged, and I've been accused so many times. To every woman who's listening, please, through my experience, I can guarantee you, redefine selfishness over self-interest. अगर आप अपने आप का ध्यान दे रहे हो, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जो आपको भगवान ने दिया है. पहले अपने शरीर का ध्यान दो, आप अपने हेल्थ का ध्यान दो, आप देन अवेलेबल हो जाओगे दूसरों के. सो यू जस्ट नीड टू रीफ्रेम दिस, नॉट पुट इट लास्ट, जस्ट पुट इट फर्स्ट. This we have to teach our daughters. I heard Oprah Winfrey saying that, when your cup is full, only then you can pour love to the Absolutely. others. If you're empty, what will you pour to the others? I have women coming in 40s and 50s, they hate their husbands, and I'm not surprised because years of suppression. But कहाँ से? Family से suppression या खुद का? It is family and खुद, you just become one, right? You have अपने आवाज को दबाना सीख लिया है ना. तो whom to blame? Both. Okay. You have to take accountability of yourself. But अगर बंदे को पता ही नहीं है तो फिर क्या accountability? But फिर वही ना, सेशन के लिए तो वो औरत आ रही है, पूरा परिवार नहीं आ रहा है ना. पूरा तो परिवार आप कहाँ से नहीं शुरू करेंगे आप? And then we have to go back. I have to, now for her to forgive her husband, first she has to heal. For herself to get on the self-love journey. तभी वो midlife crisis वहीं से है. Yes, exactly. You see? And of course, a lot of biology is engaged. When a woman is hitting her 40 and 50, her testosterone levels are high, so she becomes more aggressive. Menopause increases testosterone, estrogen. तो उसमें वो femininity थोड़ी सी, she becomes more dominant naturally. That's I think, thank God, that's nature's way of giving back that time to us, that okay, it's your turn now and you call the shots. Okay. And the dynamics in the marriages change. Which is a natural progression. Biological progression. So that's when the couple should enter into therapy if they are struggling, because relationship is the primary cause of human suffering. Absolutely, and I agree completely to it. If you're going through that roadblock, if you're going through that deepest phase in your life, relationship, not feeling worthy enough, I think we have to normalize. We have to not label someone saying, मतलब क्या तुम पागल हो क्या, जो तुमको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या जो तुमको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, या तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है. ऐसा तो होता ही है. I तो feel you have lost your mind if you have not seeking help, अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम है, because you are really lost. Yeah, lost. अगर आप बीमार हो फिजिकली, अगर आपको बुखार है तो आप कुछ ना कुछ हेल्प लोगे. एंड आप बीमार नहीं हो माइंड में, आप वी आर ह्यूमन बीइंग, वी विल हैव इमोशनल ब्लॉकेजेस, नेचुरल. हमको वो रिलीज, एक आउटलेट देना पड़ेगा ही अपने आप. व्हाई वुड यू वांट टू डाई विदाउट नोइंग योरसेल्फ? हाउ अनफुलफिल्ड इज दैट लाइफ? अपने आप की नहीं सुनी यार. जब तक आप नहीं आओगे थेरेपिस्ट के पास, आप अपने आप की नहीं सुन पाओगे. आपके जो दिमाग में चल रही है वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो आपकी मम्मी पापा, सोसाइटी, फ्रेंड्स, दोस्त, यार, पियर्स, कंपटीशन, बॉस, सबकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ नहीं है. इस सब के नीचे आपकी आवाज़ दब चुकी है. क्या गलत है अगर आप आके थेरेपी सेशन में अपनी आवाज़ सुन लो? हाउ रॉन्ग इज़ दैट? कभी तो सोचो कि हु एम आई, मैं क्यों हूँ यहाँ पर? बियॉन्ड दिस रोल क्या है? व्हाट इज़ माई पावर? व्हाट इज़ माई सुपर पावर? मैं बियॉन्ड अ पोजिशन, a salary, my physical appearance, a role of a mother, daughter, father, brother, sister, son, who am I? Without my titles, मैं हूँ कौन? कभी फुर्सत ही नहीं है इतना सब सोचने. एंड आई थिंक अगर ये खुद के लिए अवेयरनेस नहीं है, सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, एंड हेंस द रीजन ऑफ नॉर्मलाइजिंग दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, because we'll die one day with all the resentments and heaviness, and we will not realize that what fully potential life we could have lived.
सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो एनालॉजी बिल्कुल याद रखिए कि आपकी ब्यूटी सिर्फ 10% और 5% ही है आपकी पूरी इंडिविजुअलिटी को. डोंट मेक इट द फुल ब्लोन इंडिविजुअल रेजोनेंस. ओके ओके, ओके. इसमें बड़ा हाथ मीडिया का है, बड़ा हाथ आप सराउंड कर रहे हो लोगों के साथ का है, राइट? The influence that you get. हाँ, तो जैसे आप डाइट करते हो वैसे आप विजुअल डाइट पे चले जाओ. इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद बॉडी इमेज इशू, एनीबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद ईटिंग डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मोर्फिया, कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो अपने बॉडी को साथ लेके खुश नहीं है, सबसे पहले आप यहाँ से हमारी गंद निकालनी है तो हमको विजुअल कंजम्पशन को फिल्टर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट थिंग आपको वो सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करिए आप जहाँ पे सिर्फ ब्यूटी को लेके बात की जाती है, करेक्ट, बॉडी को लेके बात की जाती है. सेलिब्रिटीज जो बॉडी अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन अ सर्टेन वे, वो सारे अकाउंट के लिए कुछ टाइम के लिए आप ब्लॉक हो जाओ. नंबर 1, आप उनको फॉलो करने लगिए जो कोई ऐसा प्रोफेशन कर रहे हैं जो बियॉन्ड ब्यूटी है. ओके. दे आर आइदर अकम्प्लिश्ड राइटर्स, अकम्प्लिश जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर अकम्प्लिश सिंगर्स, अकम्प्लिश जो एक लेडी ने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है जो ब्यूटी से रिलेटेड है ही नहीं, आप वो अकाउंट्स फॉलो करने लगे तो आप उनसे काफ़ी कुछ सीखने लगोगे. आपको ये रियलाइज होगा कि ओ माई गॉड, अट्रैक्टिव इज जस्ट नॉट ब्यूटी ऊपर की अट्रैक्शन. ये काफ़ी लोग अट्रैक्टिव है, इनके काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग है फॉर गुड राइट रीजंस. यू सी, यू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर ऑफ डिफरेंट टाइप. आप मैं बोलती हूँ एक विजन बोर्ड बना लीजिए जो आप हर एथनिसिटी का आप फोटो लगाओगे. आप एक यूरोपियन लगाओगे, इंडियन लगाओगे, चाइनीज लगाओगे, मिडिल ईस्टर्न लगाओगे, साउथ एशियन लगाओगे, आप इंडियंस के डिफरेंट एथनिसिटी के फोटोज लगाओगे, आप डिफरेंट बॉडी टाइप्स के फोटो लगाओगे. सो अगर आप रोज वो विजन बोर्ड को देख रहे हो जहाँ पे आप डिफरेंट बॉडी टाइप्स देख रहे हो तो आपके माइंड में रजिस्टर हो रहा है कि अच्छा ये नॉर्मल है यार. It's not a specific. 90% of the population is this normal. Average is beautiful, and believe me, we are evolved to find average beautiful. Okay. Yes. Okay. We can find average very beautiful. This marketing companies are not telling you. Obvious reasons. आप अच्छी खासी चीज़ में फ्लॉ निकालते हो, फिर फ्लॉ का नीड निकालते हो, फिर उस नीड का सोल्यूशन देते हो ताकि आप उससे पैसे कमाओ. So you will block all these advertisements that are there. Then what you will do is you will start slowly investing in your hobbies, in your strengths, in upskilling yourself. आप कहीं भी हो प्रोफेशनली, आप कहीं पर भी हो कोई स्किल को रिलेटेड, आप उस स्किल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे. So that you come in a upward so you spiral. come up in an upward spiral. You will start. किसी ने अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया जो आपको लुक्स को रिलेटेड नहीं है, आप इमीडिएटली नोट डाउन करोगे, एक जार बना लीजिए, उसमें आप डाल दो. आज मेरे को किसी ने मेरे काम के बारे में कॉम्प्लीमेंट किया. My voice was beautiful. My voice is beautiful. I have a good smile. मैं खुल के हंसती हूँ. I help people with my talk. I make someone smile. तो ये एक जार बना लो यार आप. एक वो जार भर जाने दो यार. अब फिर वो आप वापस से रोज एक जार वो खोलो और and because that is your, this is you. So एक introduction खुद के साथ हो जाएगा कि यार मैं beyond looks, beyond the skin, there is so much more in me. And through that अगर आप किसी और से connect करोगे तो आप authentically connect करोगे. The greatest connection subconscious mind मेरा और आपका इस time पे, because we are authentic, we are in the state of authenticity. Very true. There is no filter. Very true. Okay. So anyone is deeply connected to a very authentic person. And I think that also comes from that learning state. I Absolutely. always keep myself in a learner's state. So they say na, when a student is ready, the mentor or the guru shows up. So मेरे लिए वो that learning phase is very important. So I think we need to understand that learning about your own self should be the beginning of understanding that how beauty should be the inner beauty game. जब आप एक लर्निंग स्टेज में आते हो, आप लर्निंग स्टेज में तभी आ सकते हो जब आपका ईगो कम्प्लीटली डाउन है, जब आप बोलते हो कि मुझे नहीं आता यार. एंड that's a very profound place to be, to thrive. Only when आपका जब ईगो आप नीचे लाओगे तो ही आप बुलंद दर्जे पे पहुंच सकते हो. Very well said. एकदम नॉर्मल वल्नरेबल स्टेट में आ जाओ. आप देखिए हर बंदा आपसे कनेक्ट करना चाहेगा. You see, आपको हर चीज़
आसान लगेगी, आपको किसी सामने वाले में फ़ॉल्ट ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप अपने अपना फ़ॉल्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको दूसरे में फ़ॉल्ट नज़र ही नहीं आएगा यार। और अगर आता है तो एकदम फॉरगिवनेस, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि खुद से एक्सपेक्टेशन लो हो जाएंगे तो सामने वाले से होंगे ना लोग। एंड लास्ट आई थिंक सोशली ना, हमको एज अ वुमेन और एज यू नो जेंटलमैन, हमको एक इंसान के लुक्स पे ना कमेंट करने से पहले 1 मिनट सोच लेना चाहिए, यार इसमें और क्या चीज़ है जो मैं इसकी तारीफ करूँ। Profound. तो अगर आपके सामने बहुत ही प्रिटी फ्रेंड भी आपकी आ गई, या यू नो, उसको ये बोलने से बढ़िया, यार तूने बड़ा वेट लॉस करी, तेरी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, आप ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हो कि यार कमाल है, तूने बहुत मेहनत की यार, तेरी मेहनत पे आई एम रियली कमेंडिंग The journey. I think You let's see. compliment the journey than the Yeah. achievement, because they say na, the iceberg just looks like the tip of Yeah. the iceberg. There is a huge mountain huge below, mountain which is the which we mountain don't- of every struggle and of setback every- and yeah. barriers and roadblocks. तो तो सक्सेस एकदम टिप just बनती है. ऊपर आप उसके लुक्स के बारे में कमेंट ही मत करो ना, आप ये बोलो कि, और आप बहुत ही मेस्मराइज हो गए तो बोलो यार मेरे को बहुत खुशी हो रही है तेरे को देख के। एटलीस्ट टॉक ऑफ योर एक्सपीरियंस, खाली उसको एक ऑब्जेक्ट मत बनाओ ना। That's a wise piece of advice. आप उसको खाली ये क्यों बोलते यार यू आर लुकिंग गुड, बस मतलब मेरे कुछ तो देखो ना मेरे अंदर बियॉन्ड दैट। Beyond. उसको सिखाओ ना देखने, उसको तो सिखाओ, ऐसे ही तो सोशल चेंज आएगा। आप खुद सीखोगे, एक तो आपकी लर्निंग हो जाती है जब आप ये कमेंट 1 मिनट के लिए आप खुद को एनालाइज करते हो यार बियॉन्ड लुक, तो आप अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हो बियॉन्ड लुक, आप सामने वाले को ट्रेन कर रहे हो वेरी सटली लाइक अ सोशल चेंज कि देयर इज मोर, I'm seeing you as a human being. I think this is a starting point. Socially, we can start doing that. But having said that, thank you so much for giving your time, because Thank your you. time is highly valued and appreciated. Thank And you, I thank tell you. I'm all my humbled. guests, this is the best service that you have given to me and my community by sharing your wisdom and giving me your valuable time. I just want to give you a token of appreciation. Oh, that's for, so sweet. Of course, nothing matches to the time that you've given me. No, It's no, just a that's very personalized way of saying thank you. Oh, thank you so Thank you much. for being This on is my so- show. Thank you Oh, for thank being you. so kind. Thank you for everything Thank that you, you have thank given you. today. So, with that note, please, I would urge you to feel confident from within. Pick one small step to realize that you are unique and no one on this earth is your replica. So, enjoy yourself and keep glowing and keep growing until we meet next. I love you all.